आवहै ओम शांति शांति हरि ओम। आज समरी कौन करेगा? महाराज मेरी बारी आज। हाँ भाई करो। हाँ जी, ठाकुर महाराज स्वामी जी के चरणों में वंदना करते हुए और उपस्थित सभी को मेरी नमस्ते। I have tried that to compile up like we are writing, and Swamiji is giving us the guidance with his letters. So I start. I have received your letter. I am sorry to learn your family troubles, but I don't know what to say. Only if you are extremely expert, should you ride on a horse. This proverb is very true. It seems that your troubles are due to the fact that you don't behave as necessary in leading a householder's life. As you have mentioned, your life is passing through happiness and misery. You know that the word is not everlasting. Just spend the remaining few days of your life in his thoughts and divine inebriation. What else is there in this word? This worldly life is not for you. Those who have worldly nature, let them do as they please. You try to spend the remaining days of your life in repeating the name of the Lord and praying to him that you may do so. After reading your letter, I first thought of advising you take legal action, but later I realized that was not for you. You are a man of a different nature. You would rather endure the financial difficulties than get involved in the horrible legal battle. It is neither your mistake, nor your mental weakness. You are a householder, but not an ordinary one. If you were, you would be afraid to sue that person. Don't you see that people are doing this to make money? They have no sense of right or wrong. They make money by hook or by crook. And you are reluctant to enforce your legitimate demand, lest it create a hardship for the other person. So how can I say that you are so-called ordinary householders? As I said, endure whatever happens to you. Holding the Lord, pass the remaining days of your life. He who endures survives, and he who cannot perishes. Remembering these words of the Master, pass your day through the both happiness and misery, and eventually you will attain supreme peace. It is indeed good news that you are keeping well and that your mind is not depressed anymore. It is really good sign that you are having spiritual thoughts most of the time and have a great longing for holy company. It is good and desirable for you. Don't care for mundane talks and the association of worldly people. God alone is the way and the goal of all. Always meditate on him in your heart. Don't worry. He's set everything right. Wherever the Lord keeps you, always pray that your mind dwells on him. And however he may keep you, that is for your own good. It is always good to be content wherever the Lord places you. He knows what is the best for each person and arranges accordingly. But we demand something more from him according to our liking and create a mess. Those who have worldly desires suffer from restlessness even in the solitude of the forest. किसी का फोन ओपन है? एक मिनट, पंकज भाई का डिस्टर्बेंस आ रहा है। पंकज भाई जरा करो तो बंद करो। हाँ महाराज जी और स्पीकर के अलावा जिनको स्पीकर ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दे। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। Yes. Those who have disciplined their senses, they practice austerities even while living in crowded home. This is the real truth. There is no harm in praying thus, "O Lord, wherever I may be, may I never forget you. May I have the company of your devotees. Please keep me always from worldly people." Call on him and wholeheartedly, and he will do what is good for you. As long as the Lord keeps you at home, serve your mother as the manifestation of the Divine Mother. It will be good for you.
Whatever path the Lord has earmarked for you, follow it without any doubt. Your पीयूष, duty. हाँ जी महाराज. हाँ तुम समरी कर रहे हो ना? हाँ जी महाराज, मैंने कंपाइल कर करके महाराज की जो है ना वर्ड्स को यूज किया है. अच्छा, उनको सबको कलेक्ट करके एक साथ किए ले दो, अलग अलग लेटर्स है. हाँ जी, उनको किया अच्छा. है कि जैसे कि एक पूरा पहले जो भाव क्या चाहता है, जैसे उन्होंने महाराज ने दिया, जो लेटर्स उनके पास आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे एडवाइसेस आगे दी हैं, इस तरीके से किया है. अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, कंटिन्यू. महाराज के ही मैंने सारा शब्दों को लिया, कहीं पे अपना नहीं इसमें डालने की ओके, कोशिश ठीक है, गुड पर- गुड गुड. कि जो हमारे को जैसे जो जरूरत है उसको कोशिश की है कि हम ठीक उन्हीं है. को महसूस करें कि हमारा अपना ही चल रही है. ठीक. Liberated souls do not acknowledge the result of past karma in their lives, although outwardly these do seem to exist. This is because the effects of karma in past lives arise from body consciousness, prarabdha karma. The result of actions that were begun in former lives and are now working themselves out of the present one can be maintained as long as one lives identified with the body, but no one claims an illumined soul even identified himself by body. Hence, prarabdha karma should be rejected in this case. This is the conclusion. Devotees abide by the will of the God. So they do not use the word prarabdha. Those who follow the path of karma yoga, generally they use the word prarabdha. Worship the Lord with the heart and soul. He is adorable one and the chosen deity. If he is worshipped, all duties end. If the root is watered, the entire tree gets nourished and produces flowers and fruits. You have mentioned in your letter, your duty is to try to think of God and nothing else. Then where is the room for any confusion? I was pleased reading your line of thought. You have reasoned very well. Thus, move towards him and wait for his grace. In due course of you will receive his grace and your life will be blessed. Even now your life is blessed as you are able to think of God. What else do you want? Whatever the Lord wills happens, whether we understand it or not. Whatever the auspicious God does is undoubtedly good for us. If we could understand this, there would be no end to our joy. When the luminous intellect, sattvic buddhi, manifests, it does not allow any bad thought that enters the mind, whether conditions are good or bad. The man, luminous intellect, always sees the good. It is only through God's special grace and the person develops such an attitude. When he is perfected in it, all the miseries cease forever. Blessed is the grace of the Master. The more we talk about the Lord and rejoice his glory, the better it is for us. In this word, God is only essential thing. That is what the Master taught us again and again. A poet, Surendranath Majumdar, a Bengali poet, said, all happiness is in imagination. All suffering is in fear. Yes. Things do not happen as you think. Needlessly does a man suffer from worry. This is the gospel truth. We become upset only because we worry. Otherwise, everything can be endured. The Master used to say, as the water of the dam comes from one direction and goes to the other, likewise, those who spend their money for holy causes, they never get found. Even handling money in this world of Maya, they remain like free souls. Swamiji used to say, if the door of the room is kept open, the inside air cannot be fooled. Similarly, those who spend their money for good purposes, no evil can touch them. In whatever condition our Lord keeps us, that is the best for us. If through his grace our thoughts are fixed on him, external circumstances count very little. The Master inspired his householders, devotees, to be like King Janaka, who was householder as well as illumined soul. The main thing is that must be absorbed in the thought of God, whether it is at home, it is in the home. Without realizing God,
What good is a renunciation in the forest? We need God. We must think of Him while we are sitting or standing, eating or lying. Through His grace, the human body is subjected to disease and grief. He who steadfastly worships the Lord in spite of transcends the pairs of the opposite delusion. The master used to say, let the affliction and the body take care of themselves. Oh, my mind, you dwell in bliss. It is wonderful that you have understood the implication of Master's saying, the main thing in life is to worship the Lord. Wherever you are, if you can hold the Lord in your heart and stay at your door with patience, His blessing and compassion will be dawn on you. I am happy to learn that you are practicing spiritual discipline. One finds abiding peace in only if he puts his whole heart on God. It is very difficult to do so. But if one makes attempt, the Lord draws that person to him. The master used to say, if a man takes 10 steps towards God, God comes 100 steps towards it. If this were not true, who could realize him? Is it possible to attain him through human effort? It is very difficult to do so. But if one makes an attempt, Lord draws that person to him. I received your letter. I can clearly see that your letter, through that love of God and reliance on Him, are growing more and more. It is evidence of the Lord's special grace on you. May the Lord give you more devotion, faith, and inner strength. May you gradually advance towards Him, dedicate your life and soul to Him, and be freed from the clutches of the trivial and useless thoughts. And may you take refuge in Him alone, knowing Him to be the mainstay of your life. Okay. When that happens, हो गया नहीं हुआ? नहीं महाराज, कर दो जल्दी कर. थोड़ा वो difficult. गलती मेरी हो गई. मैं आज फंस गया था. My phone did not work. That's why I got delayed. महाराज, let me conclude with, क्योंकि अभी तो और था इसमें, like I'm concluding, like I have received your letter. I can clearly see that your life, that your love of God and reliance on Him is growing more and more. It is evidence of the Lord's special grace on you. May the Lord give you more devotion, faith, and inner strength. May you gradually advance towards Him, dedicate your life and soul to Him, and be freed from the clutches of the trivial and useless thoughts. So, and after that, he has been giving the concluding words in his letters and giving the blessing. The more we talk about Lord and rejoice His glory, the more it is for us. And this would God be only essential thing. This is what the Master taught us again and again. In other letter, he blesses us. May the Master soon bless you with that experience. That is my sincere prayer to him. God is the benefactor of all beings. He takes care of each and all. This knowledge leads to peace. Further, he blesses us. Always be prayerful. You should constantly speak of Lord and about the needs of His heart. He alone is our own. It is feeling it established deeply with you. You will be free from fear and anxiety. Gradually, the Lord will make everything known to you. God is auspicious. Think faith brings peace and happiness. If you try to explain the word rough intellectual reasoning, you will be in trouble. That is why Master used to advise, realize God first, and then try to understand the word. Hold on to the word, Lord. Then all good will attend you. Thus, move towards Him and wait for His grace. In due course, you will receive His grace, and your life will be blessed. Even now, your life is blessed as you are able to think of God. What else do you want? Be at rest, surrendering yourself completely to God. There is no higher blessedness than this. Imagination will become reality. That is how it happens. At first, one has to imagine, afterward, it becomes real. As I said, endure whatever happens to you, holding the Lord, pass the remaining days of your life. He who endures survives, and he who cannot perishes. Remembering these words of Master,
pass your days through both happiness and misery, and eventually you will attain the supreme peace. So हो this गया? is all Maharaj. Okay. Thank you. You Thank you, Maharaj. see, Very good. these questions are such बहुत अच्छा. that Thank you you. cannot, make a summary. These have to be practiced. Very, very, very important letters are there, these. So I would request you people to read it repeatedly again and again and try to put them into practice. That is more important. Maharaj, this So- is what I have tried. Okay, I have Huh. tried to collect all the information and compile them into the flow, so that Okay. where we as householders, what problems we are facing. Initially, I tried to bring those. Then how Swamiji guided us. Then later on, how he advised to take the shelter of God. And later on, all his blessings, the last lines which he gave blessings to the all to whom he addressed those letters. So I have tried to compile all these things in that. Very good. Excellent. Excellent. Thank you. दिलीप भाई आ जाइए. महाराज जी प्रणाम. हाँ, भाई. मैं ये कह रहा था कि टाइम अपने पास थोड़ा होगा, मेरा आखिरी में ले लीजिए ना, सबको कंप्लीट करने के बाद जितने हो सही, क्योंकि मेरे के अंदर ही टाइम काफी चला जाएगा. अच्छा ठीक है, ठीक है. तो लेट तो फिर- आकर कंप्लीट. चलो महाराज। देवाशीष तुम्हारा छोटा छोटा है, तुम्हारे तो क्वेश्चन भी नहीं है, तो कोई स्टेटमेंट दिए हैं. जी महाराज जी प्रणाम महाराज जी. हाँ. महाराज जी फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 169 लेटर 69. व्हाट इज द लुमिनस इंटेलेक्ट और सात्विक बुद्धि? हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन लाइफ सो दैट नो बैड थॉट्स एंटर इनटू द माइंड? तो ये सेम थिंग यू ऑलरेडी टोल्ड. सात्विक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि. शुद्ध बुद्धि यानी बैड थॉट्स, उसके जिस मन के अंदर बुरे विचार नहीं होंगे, वो शुद्ध बुद्धि हो गया. खत्म हुई बात. योर क्वेश्चन जो है वो आंसर इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन. दैट्स ऑल. देयर इज नथिंग एल्स देयर. तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या जपम करना पड़ेगा या सारी ritual- साधना करनी पड़ती है. सारी साधना ही जब बुद्धि को शुद्ध बुद्धि करने के लिए करना पड़ता है. केवल जप नहीं करना पड़ता है. शम दम उपरिति करना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, संयम करना पड़ता है. सब शुद्ध बुद्धि के लिए है. स्वाध्याय करना पड़ता है, साधु संग करना पड़ता है. ये सब शुद्ध बुद्धि करने के लिए है. अच्छा जी महाराज जी. हाँ. जी महाराज जी समझ में आ गया. महाराज सेकंड क्वेश्चन, does talking about God before realization is also a part of sadhana? How अरे do ये we- तो सीधी बात है. भगवान की बात करना तो साधना हुई, नहीं तो क्या हुआ. तो उसमें तो बहुत समय चला जाता है महाराज जी. हाँ तो चला, तो क्या करना है तुम्हें, और क्या करना है. साधना करना है तो क्या आधा घंटा 15 मिनट दिन भर में साधना करना हो जाएगा उससे. ये क्या बात है. ठीक है महाराज जी ठीक है. पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 171 69 69. वो पेज नंबर वगैरह नहीं बोलो, क्वेश्चन बोलो. अच्छा लेटर नंबर 9. Is it so easy to attain that supreme love which puts God at the beck and call of the devotees? It is not so easy. It is not so easy. कुछ एग्जांपल्स दीजिए ना महाराज. एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं. यानी ऐसे अब तो ये बड़ा मुश्किल है. ऐसे भक्त हैं जो भगवान उनकी सेवा करते हैं, देखते हैं. एक संत थे, वो तो भजन में लगे हुए थे. उनकी वाइफ ने कहा कि अरे खाने को कुछ नहीं है. वो तो बताते नहीं है क्या करना है. और फिर वो कहते थे कि अच्छा मैं नौकरी कर रहा हूँ, 7 दिन बाद जो मेरे को मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुम किसी तरह 7 दिन चलाओ. और वो घर वहां से चले गए, भजन में वापस भजन में डूब गए. 7 दिन हुआ, अब लौट रहे थे, तो क्या करूं. माँ बीबी तो मांगेगी कि कुछ खिलाए नहीं. और नौकरी का यानी वो क्या मिला तुमको, कमाई क्या हुई. तो इधर देखा कि उनके घर पे एक बहुत सारा खाना पीना कहीं से आ गया. एक बहुत सारा बर्तन में खाना पीना सब कुछ आ गया. और उसने कहा कि तुम्हारे पति को बोलना कि जो काम करते हो वो करने दो, तुमको और भी कमाई देंगे. जब पत्नी वो घर पे आए तो देखा कि बढ़िया खाने पीने का वो सुगंध आ रही है. और पत्नी ने कहा कि एक आदमी आया था, वो सब दे गया है और कह गया है कि तुम्हारे पति को बोलना है कि जो काम कर रहे हो करते रहो, और भी तुमको देंगे. महाराज ये संत तुकाराम की बता रहे हैं शायद आप.
संत तुकाराम की भी यही है ना, ये सूफी संत की भी है। और राम प्रसाद जी का भी है महाराज, राम प्रसाद, उनके हाँ, साथ वो तो भी ऐसा राम, हुआ था। हाँ उस तरह के है ना, कई है। महाराज जी तो ये तो बड़े बड़े संत का है, तो हम हाँ तो नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि तुम खोज के लाओ। यानी पॉइंट इज कि तुम यही कहते हो ना कि हम 15 मिनट करना चाहते हैं बस और बड़ा संत बनना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं 1 घंटा भी करूं और सब काम करके करूं तो मेरा क्या होगा? क्या बड़े बड़े संत का तो हो ही गया है। अरे बाबा, हम कुछ तो करते नहीं है, दिन भर संसार में पड़े रहते हैं और अच्छा। 15 मिनट हो जाता है तो कहते हैं कि महाराज इतना सब काफी होगा। अभी तुमने क्वेश्चन किया था ना कि महाराज इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये संत लोग तो जो है ना, वो कहते थे कि हमने 20 घंटा किया, अरे 4 घंटा हमको सोना पड़ गया। उनको तो कष्ट होता था कि 7 घंटे भी, 4 घंटे भी हम सो गए। जी महाराज। तो ऐसे ऐसे संत लोग जो है ना, अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान को प्यार करते थे। सभी धर्मों में ये बात है। हाँ तो यहाँ महाराज पे जी। कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं है। भगवान से प्यार करना है ना, पूरे मन से प्यार करना है, संसार को पूरा त्यागना है। अच्छा, हम लोग जी क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा ये थोड़ा वो। जी महाराज जी, जी महाराज, थैंक यू महाराज जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं। अभी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में राम प्रसाद says the source of spiritual life is devotion and liberation is only a byproduct. थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। राम प्रसाद says the source of spiritual life is devotion and liberation is only a byproduct. पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ में। राम से ये 172 पेज में है, मैं पढ़ूं क्या पेज से? हाँ पढ़ो। राम प्रसाद एकदम शुरू में है महाराज, एकदम शुरू 172 एकदम फर्स्ट में है। राम प्रसाद से, अरे मेरे पास नहीं है, तुम बोलो ना क्या है। राम प्रसाद said the source of spiritual life is devotion and liberation is only a byproduct. Truly, if one can develop love for God, one achieves everything. अटेंस व्हाट? Everything. है? Everything. हाँ यस। तो क्या है तुम्हारा प्रश्न, क्या है? तो ये मेरा प्रश्न यही था कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था कि द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज डिवोशन एंड लिबरेशन इज ओनली बाय प्रोडक्ट। वी ऑल वांट लिबरेशन, हम लोग सब वो देखो, भक्तों के लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट है डिवोशन। और भक्ति मुक्ति और जो भी संसार की चीजें हैं ये बाई प्रोडक्ट है, उसकी वो चिंता नहीं करते। हम भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भगवान नरक में भी डालें तो भी भक्ति चाहते हैं। हमको जन्म जन्म से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। ये बात है। अच्छा जी महाराज। शोभा जी आप स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, gold always remains gold whether it is in a box or in a garbage can. Similarly, wherever God's devotee lives, he belongs to God. तो मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, as Sri Ramakrishna said that the mind is like the white linen coming from the dhobi's house. Therefore, if one devotee lives in some worldly surroundings, his mind also gets tarnished, and we sometimes cannot avoid this kind of situation. तो ऐसा है कि हमारा मन अभी जो है ना, वो कपड़े के समान है, और जहाँ कहीं भी रहेगा तो उसका रंग लग जाएगा। हमारा मन अभी गोल्ड नहीं बना है। साधना के द्वारा जब गोल्ड हो जाएगा तब वो कहीं भी रख सकते हो। अच्छा। अभी हमारा मन जो है वो कपड़े की तरह है, जहाँ रखोगे गंदा हो जाएगा। सावधान रहना है। ये एक ही मन है जो कभी बाद में आगे चल के गोल्ड बन जाएगा, तब उसके बाद कहीं भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो कोई भी कंपनी में हम रह सकते हैं। हाँ, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kind of virtuous deeds
makes a man free from delusions of peers. पुण्य कर्म, जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म, त्याग करना, दया करना, ध्यान करना, जप करना, ये जितने पुण्य कर्म हैं, जितने भी तुम समझते हो पुण्य कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म समझते हो, तो हाँ अब तुम पूछोगे कि पुण्य कर्म क्या है, तो ये तो सब हो नहीं सकता बाबा। जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म करने से ये बात होती है। तो महाराज जी, जब जप करो या ध्यान करो, ये सब पुण्य कर्म में आता है क्या? अरे और भी बहुत सारे काम है। सत्य बोलो, जब ध्यान करेगा और दिन भर झूठ बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आदमी यही तो करते हैं, लोग बाग जब ध्यान बहुत करते हैं लेकिन कालाबाजारी करते हैं। अरे पुण्य जी, कर्म नहीं समझते क्या? हाँ ये पुण्य भी कर्म कोई प्रश्न करना, ये तो बच्चों का कर्म प्रश्न है। यहाँ पे इस क्लास में क्या प्रश्न करते हैं ये? अच्छा जी महाराज जी, समझ में आया। समझ में क्या आया? फिर वही प्रश्न करे। नहीं महाराज जी, ठीक है, समझ में आया। ये कॉन्टेक्स्ट में जो बताया गया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा, लेकिन ठीक है, नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर वी इन ट्रबल इफ वी स्टे इन द वर्ल्ड विदाउट रियलाइजिंग गॉड फर्स्ट, बट इट इज नॉट इजी टू रियलाइज विदाउट हिज ग्रेस। क्वेश्चन ऐसा, इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बताया गया कि टू रियलाइज गॉड एंड स्टे इन द वर्ल्ड, बट आवर्स इज नॉट पॉसिबल। हम लोग जो रहते तो हैं इस ठाकुर तो बोलते हैं, हाँ हम तो क्या है, सुनिए, हम साधना भी नहीं करना चाहते, हम रियलाइज नहीं करना चाहते और कहते हैं कि हम क्या करें। ठाकुर कहते हैं बीच बीच में निर्जन में जाके एकांत में साधना करो। 1 दिन हो तो भी ठीक है, 5 दिन हो तो भी ठीक है, 10 दिन हो तो भी ठीक है, और 1 महीना हो तो भी ठीक है, साल भर हो तो भी ठीक है। एकांत में जाके और सोना बन जाओ, उसके बाद में जहाँ रहो। नहीं, हम केवल प्रश्न करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं काम चलेगा। नहीं महाराज जी, ये तो जारी है, चालू तो कर रहे हैं, लेकिन अब लेकिन अब कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं देखो, हो रहा पता नहीं। जब तक सोना नहीं बनोगे ना, तब तक लेकिन चलेगा। कठोर साधना करनी पड़ती है। कोई भी संत ऐसे नहीं हुए, कोई भी महापुरुष नहीं हुए, कोई भी भक्त नहीं हुए, कोई भी गृहस्थ नहीं हुए, लेकिन इनको खूब कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ी। और इधर महाराज जी बोलते हैं, तुरानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि कोई साधना करने से ऐसा मत समझो कि भगवान मिल जाएगा। वो तो हाँ खाली विंग्स को पेन, डाना व्यथा बोलता है हाँ, ना, तो आपका विंग्स को बहुत ही पेन होता है। तो एक तरह से साधना बहुत ज्यादा कर लिया, इसका मतलब है भगवान जल्दी मिल गए, ये तो आप देखिए लेटर में बोल ही दिया है हाँ तो मत करो साधना। ना। साधना तो करेंगे, और क्या करेंगे फिर? तो फिर दोनों बात कर रहे हो तुम नहीं कि ठीक है साधना महाराज करने जी। से। महापुरुष कह रहे हैं तुम ऐसा मत समझो कि मैंने इतनी साधना की है, 10 लाख जप किया है, भगवान मिलेंगे, ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा, ये महाराज बोल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अरे नेक्स्ट वो कल क्वेश्चन। फिर वही हो जाएगा, जहाँ के हो वहां के। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, ये हाँ। हैमरिंग करते करते तो शेप में आ जाएगा। अरे बाबा, हो लेकिन कितना हैमरिंग करूंगा, मेरे पास भी तो ताकत होनी चाहिए ना। ना 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 महाराज जी चलो आपका। चलो क्वेश्चन चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में है, दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ कर्मा योगा, आर दे नॉट डिवोटीज? बिकॉज डिवोटीज अबाइड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, सो दे डू नॉट यूज द वर्ड प्रारब्ध। डिवोटीज लोग प्रारब्ध बोलते नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा है, ये होना ना था, अच्छा हुआ नहीं हुआ, बट द कर्म योगी और बिलीव इन प्रारब्ध। देखो एक ही चीज है, देखो एक ही चीज है, वो भगवान की इच्छा ये भक्त लोग बोलते हैं, और प्रारब्ध कर्म कर्म योगी बोलते हैं, लेकिन चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है। अब बिल्कुल ठीक बात, अभी और भी लोगों इसके ऊपर डिस्कशन होगा। ओहो, एक अच्छा, ही चीज को भक्त लोग बोल रहे हैं कि प्रभु की इच्छा से हुआ, हाँ और उसी को कर्मयोगी बोलते हैं कि ये प्रारब्ध करते। हाँ। तो चलो, कौन 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 श्रेष्ठ है? ये जो अरे भक्त अरे है चीज तो एक ही चीज है भाई, उसके नाम बदल दिया और कुछ नहीं। ठीक है महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज जी। क्या अच्छा, समझे तुम? अभी दोनों एक ही चीज है, लेकिन भक्त लोग अपने भगवान का विल से ही हुआ है सब कुछ। कोई कोई मुसीबत आते हैं तो भगवान को ही साथ जुड़ते हैं उनको, और कर्म जोगी उनको बोलते हैं मैं पिछले जन्म में ऐसा किया था बस तो। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में महाराज जी, भगवत गीता में 18.61 में
भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं his maya causes them to revolve as though mounted on a machine. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है महाराज, is this the same as what Sri Ramakrishna said, mother you are the operator, I am the machine? ठीक है, ये दोनों की सेम है? ठीक है, एक ही है। ओके, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। चलो महाराज जी। सुबीर जल्दी से कर लो। तो वो दिलीप भाई ने लगा दिया हमको पहले। दिलीप Sacrifice- भाई हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी सुबीर कर दो। दिलीप भाई बैठे हुए हैं। हाँ, प्रणाम महाराज जी। सिर्फ 2 हाँ। क्वेश्चन है। लेटर 94 165 पेज में स्वामी तुरानंद कहते हैं ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू महाराज? ऐसा है कि वहां पे जैसा यूज किया है, वहां पे सेल्फ अवेयरनेस में एस जो है वो कैपिटल किया है। अच्छा, और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब वहां पे उस आर्टिकल में है आत्म साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कार, ओके। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का है आध्यात्मिक दृष्टि, दैट इज ए लोअर लेवल। हाँ हाँ, वो मेरे को भी यही लग रहा था महाराज। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि क्या होता है? आध्यात्मिक यानी हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं संसार को देख रहे हैं, वो समझ उसको रहे हैं एक- कि ये भगवान की लीला है। अच्छा, तो वो मतलब और ये उसको मैंने कुछ काम किया, हाँ। काम किया तो भगवान ने मुझे चला के किया है। यानी जी, जी, सब मैं दृष्टि समझ से गया। एक प्रकार से भगवान का भाव हमारे मन में रहे, उसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस बोलेंगे। हाँ, मतलब वर्ल्डली पर्सपेक्टिव को चेंज करके एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हाँ हर हाँ चीज हाँ, को देखना, वही हर चीज को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखना। समझ गया। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे जो यूज किया है वो तो साक्षात्कार के रूप में। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, द पोएट हफीज इज कोटेड बाय स्वामी तुरानंद इन लेटर 101 पेज 177 एज सेइंग, तो हफीज कहते हैं, इफ माय बिलवेड लव्स टू सी मी wallow in the dust of poverty, and if I turn my gaze towards the lake in heaven, then I am short-sighted indeed. तो मेरा सवाल ये है, if a poor devotee wallows in poverty, should he not aspire for better conditions rather than being content? It is not a question of should he not, he will not aspire for better conditions. अच्छा, तो उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि देखो कुंती जी, ने जी। क्या कहा था, दुख दो। कुंती ने क्या कहा था, जब भगवान जब जाने लगे तो रोने लग गई जी, कि प्रभु जब तक हम पर विपत्ति थी तब तक आप हमारे साथ में थे, अब विपत्ति दूर हुई तो आप अच्छा। जा रहे हैं, ओहो, इससे तो आप सदा विपत्ति बनी रहे, इससे पुनर्दर्शन आपका अदर्शन न होवे। ये फेमस श्लोक है, मालूम है ना? जी महाराज। हाँ, वो क्या, विपत्ति न स्यात् विपद न स्यात् यत् हाँ, पुनः अदर्शनम, हमारे विपत्ति बनी रहे जिससे प्रभु आपका अदर्शन न होवे। तो भक्त जो हैं वो जही विधि राखे राम ये करते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऊपर की चीज नहीं। अगर विपत्ति से भगवान पास में रहे तो वे जरूर उसको चाहें। जी महाराज। इज दैट ओके? दैट्स ओके महाराज। महाराज, ये जो श्लोक जहाँ से आपने ये बोला उसको कभी शेयर कीजिएगा अपने, हाँ, ताकि हम श्रीमद् लोग भागवत, उसको, हाँ हाँ ठीक है, श्रीमद् भागवत सो का है। दैट वी कैन, ये बार बार हम अपने आप को बोल सके कि हाँ 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 हाँ, कितना उच्च आदर्श है ये। विपद संतु न स्यात्, तो वो मैं देख के बताऊं। जी महाराज, थैंक यू महाराज, दैट्स ऑल महाराज। इतू जल्दी बोलो तो। इतू कहाँ गई? सतीश, महाराज। अच्छा प्रणाम चलो महाराज। तुम, हाँ चलो आ जाओ। जी, एक सेकेंड, क्वेश्चन मेरा इधर उधर चला गया। जी, मेरा पहला प्रश्न है, ही इज एवरीथिंग, he is everything, he is in everything. Reflecting and meditating, thus one attains realization. Imagination will become reality, that is now
that is how it happens. At first, one has to imagine. Afterwards, it becomes real. So my question is, how to put this into practice? क्यों रोज ये बैठ के और ठाकुर का कमरे में चले जाओ, इमेजिनेशन करो, ठाकुर कमरे का इमेजिनेशन करो, ठाकुर छोटी खटिया पे बैठे हुए हैं और उसके बाद में उठ गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और वो पंचवटी की तरफ जा रहे हैं, नरेंद्र हैं, ये पूरा का पूरा अच्छी तरह इमेजिनेशन करो। तो इससे मतलब वो रियल दिखने लगेगा। हाँ, अच्छा गहरा रियल करो तो ठाकुर रियल दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं नहीं ठीक हाँ, वही तो, कोई चीज पूरी नहीं होती। जी अरे जो ध्यान होता है वो क्या है, ध्यान में तो रूप ही तक कल्पना ही तो करते हैं। जी 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 ये तुमको लंबा कल्पना तुमको समझाने के लिए बताया कि ठाकुर का कमरा है और पंचवटी है, लेकिन केवल ठाकुर के रूप का ध्यान करो ना, कंटिन्यूअस तो नहीं होता। है, वो होना मुश्किल है, लेकिन भगवान। ठाकुर पंचवटी जा रहे हैं, ये सब इजी है। क्योंकि वहां पे पंचवटी दिखती है ना, तो जी ठाकुर का तो होता नहीं ध्यान, पंचवटी का ध्यान होता। जी नहीं, ठाकुर का भी होता है। ओहो, ऐसा नहीं होगा, हो जाए इमेजिनेशन करो, वो रियल कब होगा, जब जी कंटिन्यूअस बना रहेगा तब तो। जी जी भगवान, यही तो बात है, इतना दिन हो गए और ठाकुर का ध्यान ही नहीं, ठाकुर का कल्पना ही नहीं होती है भगवान। चलो आगे नहीं, चलो। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, नहीं तो बस ठीक है। क्यों अच्छा। समझ में क्यों नहीं आ रहे? अरे हम नहीं चाहते ठाकुर को, दर्शन नहीं करना चाहते, दर्शन करना चाहते तो सीधा उपाय बता दिया है कि बराबर जी निरंतर ठाकुर का कल्पना करो, ठाकुर की जी सीधा रास्ता बता दिया, इतने इजी बता दिया, लेकिन हम नहीं चाहते ठाकुर को, इसलिए 2 मिनट होगा फिर चला जाएगा। ठाकुर में प्रेम नहीं है इसलिए कल्पना नहीं होती। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? Devotees abide by the will of God, so they do not use the word prarabdha. Those who follow the path of karma yoga, generally they use the word prarabdha. So how this prarabdha works? Are the devotees not affected by this law? नहीं, तो प्रारब्ध और विल ऑफ गॉड दोनों एक ही है ना, अभी जी बोला तो। अभी अब सुने हैं आज, हाँ आज आप बोल रहे थे तब। हाँ, अच्छा और प्रारब्ध और विल ऑफ गॉड दोनों एक ही चीज है। जी और डिवोटीज के लिए प्रारब्ध विल ऑफ गॉड है और कर्म योग के लिए प्रारब्ध। अच्छा, डिवोटीज ये नहीं मानती कि तेरा प्रारब्ध खराब था इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं, नहीं भगवान मानती। की इच्छा बोलते हैं, भगवान की इच्छा कारण। अच्छा हाँ जी चलो जी सतीश आ जाओ तो। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ भाई, महाराज अभी जो क्वेश्चन पूछा उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा ना ठाकुर का ध्यान नहीं होता, तो इस कंटेक्स्ट में पूछूं मैं क्वेश्चन महाराज? पूछो। महाराज वो तो चलते ठाकुर का- रहेंगे, वो चलते हाँ। रहेंगे, 10 साल तक क्वेश्चन चलेंगे, ठाकुर का ध्यान नहीं होगा। हाँ, महाराज ठाकुर का माँ का ध्यान ज्यादा होता है, तो उससे इमेजिनेशन ज्यादा होता है माँ का, तो एक ही बात है। ठीक है, मन ही मन ध्यान रखना है कि ठाकुर माँ एक है, हाँ हाँ वो तो है ही, वो तो बस है ही। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। Poet Kamalakant says God realization is as impossible as crossing the ocean. My mind understands this, but my heart does not. It wants to reach the impossible, just like a dwarf trying to reach the moon. Maharaj, who is right? Is it heart or head? Whom should we follow? हार्ट महाराज हमेशा ऐसा heart। है कि हार्ट में तो जो है ना, हमारा माइंड जो है वो तो कैलकुलेटिंग है, वो तो वही तो हमेशा मैंने कहा कैलकुलेट कि करता है। माइंड जो है, हाँ माइंड तो कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, लेकिन हार्ट जो है वो पकड़े रहता है। माइंड कैलकुलेट करता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमें कहाँ दर्शन होंगे, तो ये सब बातें उसके दिमाग में आने हार्ट आती तो हैं। कहता है, हार्ट तो कहता है नहीं मैं दर्शन करूंगा। हाँ जी जी जी
हार्ट तो तो फिर- कहता है कि नहीं वो बड़ी कृपा में है, वो तो हमारे जो है ये नहीं देखेंगे कि हमने कितना किया है कितना नहीं किया है। हाँ तो हार्ट को पकड़ो ना। हार्ट को ये तो पकड़ो। बोल- महाराज ये स्वामी जी ने भी कहा हेड और हार्ट में अगर ये कंफ्यूजन है तो हार्ट को ही पकड़ो। वही तो। जी 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 जी। Next question, Maharaj. God is an object of passionate love, and without it, how can one obtain Him? Maharaj, how can one develop passionate love for one who lives only in our imagination? Inversely, how can we develop dispassion towards world which seems real? ऐसा है कि देखो ये बड़ा मुश्किल है, यानी भगवान को पैशनेट लव करना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो प्रेम या प्रीति अविवेकानाम विशेष विषयों के प्रति जो प्रीति है वह प्रीति मुझे भगवान के प्रति होवे। जो जी, पैशनेट लव एक पत्नी के प्रति होता है, एक पुरुष का, वह भगवान के प्रति हो। इसीलिए भगवान के लिए मधुर भाव कर लिया, भगवान के लिए वात्सल्य भाव कर दिया, भगवान को बालक बना के उसको प्यार करो। ये इससे हमारे लव जो है वो पैशनेट लव बढ़ जाएगा। तो भगवान को बालक समझकर प्यार करो तो पैशनेट लव आ जाए। But it remains in the realm of imagination, Maharaj. वो लव, हाँ वो पैशनेट लव सब इमेजिनेशन में ही है। इमेजिनेशन क्यों? जैसे अरे ये तो संसार की जितनी चीजें हैं ना ये भी इमेजिनेशन तो है। इमेजिनेशन ही है। हाँ। ये वो तो क्या कहते हैं भगवान का फोटो ले लिया ना, हाँ जी जी। तो फोटो को प्यार करते हैं, फोटो को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। तो इमेजिनेशन क्या ये सत्य हो गया? तो सत्य हो गया। राइट महाराज, राइट। I followed it. महाराज जी मेन चीज है कि एक रिलेशनशिप करना है भगवान के साथ। तो वो कुछ तो बोलो ना सतीश से बोलो। जी 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 महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डॉक्टर सुधीर मजमूदार ने पूछ दिया है स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में। इसके बारे में मेरा ये है कि उन्होंने आगे भी कहा था सो द वर्ल्ड ऑफ माया विल नॉट हार्म यू। जिसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसको माया हार्म नहीं करेगी। जिसमें स्पिरिचुअल बुद्धि होगी, भगवत बुद्धि होगी, वही है ना, तो उसको माया हार्म नहीं करेगी। हाँ जी। क्या वो जानता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, भगवत भाव बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को माया नहीं प्रभाव करेगी। राइट महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज। Let the affliction and body take care of themselves. Oh mind, you live in bliss. Maharaj, body and mind are interconnected. How can one be peaceful when afflicted? वो क्या है, मन जाने देह जाने दुख जाने मन तो आनंद में था, ये है ठाकुर ने कहा था। ठाकुर के गले में कैंसर हुआ था तो ठाकुर बोलते थे अरे कैंसर होगा गले में होने दो, मैं मन जो है तो आनंद में रह। तो ऐसा है कि अगर जहाँ पे हमारा प्रेम अधिक होगा ना तो वह मन के ऊपर पड़ा चला जाएगा। अरे ये एक बच्ची, एक माँ है, अगर माँ को बीमार भी होगी तो बच्चे को फिर भी वो देखती रहेगी, बच्चा अगर आएगा तो वो उसको गोद में ले जाएगी। यानी मन जो है वो शरीर के ऊपर चला जाता है, ये बात है। दोनों एक है। यह दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा देह जो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि देह जो है अपने शरीर को चलाता है, राइट। मन को चलाता है। सच पूछा जाए मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वह शरीर को चलावे। जी 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 महाराज जी। आजा दिलीप भाई बीच में आजा, अभी तो बाकी बचे हैं बहुत सारे। जी जी महाराज जी। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ मेरा पहला सवाल है, he who is devoted to Chaitanya is verily my life and soul. This is the innermost feeling of every devotee of the Lord. Maharaj ji, the status of a devotee is so high in the eyes of a saint. Each saint knows who is a devotee and who is a hypocrite. भाई ऐसा है कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो संत भी जो लोग हैं ना उनको जो है धूर्त लोग जो है वो उनको बुद्धू बना देते थे जी। हाँ तो क्या करेंगे बाबा, बड़ा मुश्किल है पता लगाना है कि कौन संत है और कौन धूर्त है। तो बड़ा मुश्किल है पता। हाँ
महाराज जी पर ये इससे मेरा से वो तो बराबर है। मेरा सवाल ये है कि डिवोटी का स्टेटस बहुत ऊंचा होता है संत की नजर में। हाँ, इसीलिए तो जो वो जो हिपोक्रिट होते हैं ना, वो जो है वो बड़े संत बन के आनते हैं कि लोग उनको संत माने, इसीलिए तो। अच्छा जी जी हाँ, राइट। बड़े बड़े तो तिलक लगाएंगे, बहुत हाँ कुछ लगा के आज तो बड़ा संत बनने की कोशिश करेंगे ना, जी जिसलिए कि अपना लाभ बन जाए। वो जो धूर्त बदमाश लोग होते हैं। हाँ हाँ यस जी। माय सेकंड क्वेश्चन इज महाराज ये लाइन मुझे भी नहीं अच्छे से समझ में आया, यही वाला फिर से एक बार बताइए ना, ये क्या बोल रहे हैं हम, ये जो अभी पढ़ो डिस्कशन किया है। पढ़ो लाइन को पढ़ो। He who is devoted to Chaitanya is verily my life and soul. This is the innermost feeling of every devotee of the Lord. लॉर्ड, हाँ हाँ, Yes, ये मेरा तो जो भक्त है हाँ वो समझता है हाँ डिवोटी के सामने वाला जो संत है वो भगवान के साथ एक रूप है, वो चैतन्य के अंदर डूबा हुआ है। जी। हाँ 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 अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हैं अभी? अभी मैं आप ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो है वो धूर्त लोग जो हैं वो हाँ, भक्त बन के हमारे सामने आते हैं अच्छा अच्छा और हम समझते हैं कि ये बहुत उच्च संत हैं। हम्म। तो आगे आया ना हिपोक्रेट की बात। महाराज Yes. जैसे कथामृत में हम लोग देखते हैं वो जो कृष्ण किशोर बोलते हैं ना, कोई भी जो भी भगवान का नाम ले रहे संत है, उनको चिन्मय है, उनका शरीर चिन्मय है, वही हाँ बात है ना, वही हाँ बात हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। जी। Yes, महाराज जी मेरा नेक्स्ट सवाल है, be an instrument in his hand and follow the path which is selected for you, then you will be relieved of all fear and worry. How to know which path the God has chosen for me? ये बहुत सा ये वेरी डिफिकल्ट। व्यक्ति हम लोग क्या है कि हम शादी की एजुकेशन हो गई, उसके हाँ बाद मैरिज हो गया, जॉब जी में लग गए, तो ये तो भगवान ने बना दिया, उसके अनुसार हम चले जा रहे हैं। हाँ लेकिन प्रॉब्लम जब अराइज होता है कि अब संन्यास जब हमसे लेना पड़ता है, अगर आपको कोई जॉब सिलेक्ट करना पड़ता है जी एक जगह, अभी तो बैठे हुए कुछ नहीं, जगह जवानी में आपको जॉब सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस बिजनेस में जाएंगे कि उस बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे या नौकरी करेंगे, ये सब जो करना है इट बिकम डिफिकल्ट। हाँ तो ये है कि इसमें अदरवाइज शुरू में तो सब ठीक ठाक बना रहता है, हाँ लेकिन अदरवाइज जैसे खास करके जब संन्यास की बात आती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना है कि भगवान ने मेरे लिए क्या मार्ग बना के रखा। हुआ तुम्हारा प्रश्न? महाराज जी नहीं नहीं, मेरे को be an instrument in his hand and follow the path which is selected for you, then हाँ, you वेरी relieve point all fear is- and worry. तो हाँ, ये पॉइंट वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द पाथ इन भगवान हाँ। ने जो दिया। जी एक बार सिलेक्ट हो जाए उसके बाद में हम भगवान के हाथ में यंत्र हो सकते हैं। हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, साधु बनेंगे, रामकृष्ण मिशन के साधु बनेंगे, अब हाँ। रामकृष्ण मिशन को कहाँ भी रखे कि उनके बराबर। हाथ में यंत्र बन गए हम। अच्छा नहीं, पर महाराज जी जैसे हम भी यही कह सकते हैं कि we are in the instrument in the hands of God and follow हाँ। the path which is, ईश्वर ने हमारे लिए ठीक ये है। पाथ सिलेक्ट किया था वकालत का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और हम ये उससे लाइन में कर आगे लिया है। बढ़े जा रहे हैं और अब हाँ, हमें ठीक है। फिक्र भी नहीं है। हाँ, अगर तुम दे सको, भगवान में शरणागत हो सको तो करो। अच्छा इस हाँ। लाइन में भी हो सकते हैं। हाँ, अब ये वो इसमें right- एक प्रश्न आएगा बाद में है, वो शरणागति कैसे करना, हाँ उसका मैं डिस्कस करूंगा। कुंटू ने जो आप प्रश्न किया उसको करेंगे अभी। right. My next question, how to know the Lord does his own work and he is doing it? Blessed are they who he makes his instruments, because the worldly man is always in pains and suffering. महाराज जी ये कैसे होगा? How to know the Lord does his own work and he is doing it? यानी ईश्वर जो कर रहा है वो उसी का काम करने जा रहे हैं। Blessed are they whom he makes his instrument. हाँ, तो वो अर्जुन को भगवान ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया ना, बराबर, यस।
और उसके बाद कितना कष्ट दिया, जी वो कष्ट से मुक्ति कराई क्या भगवान ने अर्जुन की? नहीं, फिर अभिमन्यु को मारवाया और उनको कितना हाँ। मरवाया, कितना कष्ट दिया इनको पांडवों को, और भगवान ने करवाया ना। हाँ हाँ, यंत्र बनाया भगवान ने कि मैं कर रहा हूँ, ये तुम यंत्र बनो। गीता में तो स्पष्ट कहा है ना। हाँ, निमित्त मात्रम भव साच्य सभ्य साची, मैं सब कर रहा हूँ, तू निमित्त मात्र बन। हाँ हाँ भाई, मन बन गए, निमित्त बन गए। अब निमित्त की हालत खराब हो रही है और गिरीश यंत्र घोष, बना लिया है, और उसके बाद यंत्र की हालत खराब हो रही है। हाँ गिरीश घोष महाराज जी। और गिरीश घोष को कितना यंत्र बना दिया, शरणागति कर दिया, उसके बाद कितना कष्ट है। पुत्र भी मर गया। जी तो भाई, भगवान को तुम सोचो कि वो कष्ट नहीं देंगे, ये नहीं है। हाँ ये लोग जो है ना, ये स्वार्थ के कारण सुख के लिए भगवान को जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम चाहो तो ठीक है, तुम जो मर्जी में करो, मुझे क्यों कष्ट देते हो? तो महाराज जी, हम भी भगवान के पास शरणागति के लिए जाते तो ये इसके लिए थोड़ी जाते हैं कि तुम हमें कष्ट दो, पर प्रभु तो हमारा उद्धार कर दो, हम ये कहते हैं। हाँ, वो ठीक है, तुम्हारा उद्धार जो है वो तुम्हारे कष्ट के द्वारा ही होगा। अच्छा जी जो कुछ कष्ट के, तुम्हारे कष्ट के द्वारा तुम्हारे पाप कर्म कटेंगे, तब उद्धार होगा तुम्हारा। अच्छा अच्छा बराबर। तो भगवान कहते हैं कि मैं यदि उद्धार करवाना चाहता हूँ तो मैं अपने रास्ते से उद्धार करूंगा तुमको। इतना Next. आसान नहीं बाबा। हाँ, नहीं। तो संतों के जीवन पढ़ो, सारा संतों के जीवन में एक संत बता दो जिसके जीवन में सुख होगा। दिलीप भाई। जी बराबर। नहीं, ये महाराज जी दैट्स राइट, पर यहाँ पे एक ये सवाल जो खड़ा है, सबसे पहली लाइन है, द लॉर्ड डज हिज ओन वर्क एंड ही इज डूइंग इट। ईश्वर अपना काम करे जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, करता तुम मानो ना, तुम मानो इसको। हम माने ना माने, इट इज ए रियलिटी। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो उसका कोई प्रश्न नहीं। फिर प्रश्न क्या हुआ? तुम मत मानो तो मत मानो, तुम मानो तो मानो। ये यंत्र पर एक लाइन बोली है, तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ? नहीं और तुमको तो हम नहीं मानते तो मत मानो। नहीं नहीं माने नहीं, फिर आगे ये लिख रहे ना, ब्लेस्ड आर दे whom he makes his instrument। यस, ये मेरा सवाल था। नहीं नहीं, वो तो भगवान अपना काम कर रहे हैं। हम ही हाँ। लोग धन्य हो गए यदि हम उनके यंत्र बन जाते हैं। अगर तुम यंत्र नहीं बने तो भगवान का कुछ नहीं जाता। नहीं, वो बराबर दूसरे किसी को यंत्र बना लेंगे। तो है। भगवान ने कहा कि भाई ये तुमको एक स्कूल चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट करेंगे स्कूल चलाने। नहीं नहीं, जी। मैंने ये चक्कर में नहीं पड़ता, झमेले में नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं दूसरे को बना दूंगा। नहीं ओके जी महाराज जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज बी प्रेयरफुल। You should constantly speak to the Lord about the needs of your heart. He alone is our own. If this feeling is established deeply within you, you will be free from fear and anxiety. Gradually, the Lord will make everything known to you. Maharaj ji, it means that for all worldly and spiritual needs, we should speak to God, and then we will be free from fear and anxiety. What gradually the Lord will make everything known to you. नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि अब तो भगवान से बात करो ना। हाँ नहीं, प्रश्न ये है कि भगवान से बात करने की आदत बनाओ, यही तो है ना। जी हाँ जी। हाँ, तो Yes. बनाओ ना, रोज रोज भगवान से सुबह शाम बात करो। काम करने निकलोगे कि ना, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम मेरे साथ चलना। तो वहां बैठ गए कि प्रभु मैं यहाँ पर आ गया। जब चाय आई तुम्हारी तो प्रभु को ऑफर करके ले आओ। Yes. कंटिन्यूअसली भगवान के साथ में रहो। Yes. अच्छा जी महाराज। Now my next question is, all happiness is in imagination. All suffering is in fear. Things do not happen as you think. Needlessly does a man suffer from worry. Maharaji, this small couplet has said everything. Then how to live in this world when no happiness, no fear? क्या हुआ? महाराज जी, ये
हाँ, ये कपलेट के अंदर सब कुछ इन्होंने कह दिया है। ऑल हैप्पीनेस इज इमेजिनेशन, ये सब जो सुख खुशी है ये सब इमेजिनेशन है। हाँ। एंड ऑल सफरिंग इज इन अ फियर, सफरिंग हो रहे वो फियर में। हाँ। थिंग्स डू नॉट हैपन एज यू थिंक, हाँ। ये भी मंजूर। हाँ। needlessly does a man suffer from worry, हाँ। तो फिर क्या करें? क्या हाँ। करना, क्या है, जो है सो है। साधना करने का। तो ये तो Yes. सत्य, ये जो सत्य है स्टेटमेंट किया है बस। आपका प्रश्न क्या है, ये तो स्टेटमेंट दिया है जी कि तुम्हारा जो डर है ना वो भी इमेजिनेशन में है। हाँ, हाँ। ये डर भी इमेजिनेशन है, राइट महाराज जी? हम्म। ओके, हाँ। अब मेरा 1 मिनट और मैं ले रहा हूँ आपसे। हाँ। यस महाराज जी, ये लेटर नंबर 107, इसकी सिर्फ 6 लाइनें जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जानकर निश्चित लेना कि तुम प्रभु का कार्य कर रहे हो। दुखी क्यों होते हो? सब में वे ही विद्यमान है और सब कुछ वही है। ये चिंतन करते करते ही सिद्धि प्राप्त होगी, कल्पना साकार हो उठेगी। ऐसा ही होता है, पहले कल्पना करनी पड़ती है और बाद में ही वही सत्य होता है। और यहाँ ये लिखा ऑल हैप्पीनेस इज द इमेजिनेशन, और ये तो कहते वही हैं तो कि हुआ, जो कल्पना किया है वो कल्पना जो है वही बाद में सत्य बन जाएगी। शुरू कल्पना से ही होगा। अच्छा, ऑल हैप्पीनेस इज इन इमेजिनेशन एंड ऑल सफरिंग इज इन फियर। हाँ, भय, डर के कारण हमारे को डर वो लगता है, भय लगता है। एंड अरे बच्चा खेलता रहता है, उसको कुछ परवाह नहीं है। हाँ, माँ को डर लगता है कि अरे इसको क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। तो माँ को डर लगता है कल्पना में, यानी इमेजिनेशन में। तो बच्चे को नहीं लगता, डर लगता है। तो वो हम मस्ती में रहता है। जी हाँ। ओके जी महाराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if God out of compassion keeps our minds absorbed in him, then pain won't be felt as such. Maharaj ji, my question is, if God out of compassion keeps our minds absorbed in him, then pain won't be felt as such. But if not, then what and what to do? यदि ये नहीं होता, ये भगवान को प्रार्थना करो और भगवान का नाम लो। हाँ हाँ, भगवान क्या करो, यानी संसार से बचने का एक उपाय भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो भगवान से, बस, नथिंग एल्स। महाराज जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ठाकुर ने एक भजन में गाया है, मुझे मुक्ति देते हुए असुविधा नहीं होती, परंतु शुद्धा भक्ति देते हुए होती है। यस, what is Suddha Bhakti? And further, Ram Prasad said, the source of spiritual life is devotion, and liberation is only a byproduct. Truly, if one can develop love for God, one achieves everything. सर्व साधनों का मूल भक्ति है, मुक्ति तो उसकी दासी है। तो वो भक्ति, तो ये भक्ति है भगवान पे पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागति, शुद्धा भक्ति। तो ऐसे लोगों का भगवान भार वहन करते हैं, उनका खाना पीना सब देते हैं। ये बाबी बात हो गई ना। पूर्ण रूप से भगवान पर शरण हो गए तो उनका खाना पीना भगवान कर देंगे, उनकी नौकरी जुड़ा देंगे। बोला ना वो 7 दिन से सुनेगा, 7 दिन बाद मेरे को कमाई मिलेगी। देखा, भगवान सारा का सारा चीज उनके घर पे पहुंचा दिया। तो अनेक कहानियां हैं कि भगवान जो है, जो पूर्ण शरणागति देते हैं तो भगवान उनका सब कुछ करते हैं। वो भक्ति, वो उसके बाद में नरक में जाए तो भी भगवान उनकी रक्षा करेंगे, स्वर्ग में जाए तो भी भगवान उनके पास रहेंगे। मुक्ति तुक्ति तो छोटी बात है। भगवान के कंधे पे बैठे रहते हैं वो बच्चे की तरह। हाँ, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है तब होता है। अच्छा, मुक्ति उसकी दासी है। हाँ, जब चाहे तो मुक्ति मिल जाए। भगवान से पूछे मुक्ति दो तो भगवान दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। लेकिन बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, मैं काहे को छोड़ू। मेरे को तो भगवान चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जी, ये पूरा वैष्णव धर्म इसी पे निभा है कि अरे सभी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सब। अच्छा, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन महाराज, ओनली लास्ट। लेटर नंबर 99 is full of the problems of life. Maharaj ji, who is the
this Bihari Babu, to whom Swami Turiyanand ji has loved so much and wanted to give him blessings of God. वो नहीं महाराज जी, मालूम, ये ये बिहारी बाबू के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, पर पूरे यानी तुरानंद जी महाराज ने उनके लिए पूरी व्यवस्था करी है। हाँ, ठीक तो है ये जी। हम अरे तो साधना भी तो हमारा किया है। अरे वो तुम्हारे लिए व्यवस्था साधना की है, भी, तुम भी नहीं, ऐसे नहीं, हो जाओ अरे, ना। हाँ, चलो। बिहारी बाबू प्रणाम महाराज। हाँ, बस दैट इज ऑल महाराज। अच्छा, हो गया। हाँ, अच्छा, अब कौन बता? मेरा प्रश्न पहले ले सतीश हो गया, सतीश हो गया ना? हाँ महाराज, मेरा ले लीजिए। अच्छा, निवेदिता, चलो। हाँ हाँ, पहला प्रश्न का हो गया ऑलरेडी। दूसरा है, ओनली देन वन कैन सी द फेस ऑफ लॉर्ड, व्हाट इज दर्शन एंड हाउ डज द डिवोटी हैज ग्लिम्पसेस ऑफ गॉड। क्या हुआ? 160 मतलब दर्शन का कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर है ये जो 165 में, he uplifts the devotee to the state when one calls on him with heart and soul. He reveals himself the heart and imparts true knowledge. Only then does one see, a bracket में लिखा है, the face of divine mother. तो मेरा प्रश्न है कि ये जो दर्शन होता है वो उसका कैसे होता है? वहीं पे तो लिखा हुआ है, कॉल विथ हार्ट एंड सोल, लिखा है कि नहीं? कॉल गॉड विथ हार्ट एंड सोल लिखा है कि नहीं? मतलब ये लिखा है पैशनेट लव एंड कॉल गॉड विथ हार्ट एंड सोल, लिखा है कि नहीं? जी जी। अब बस उसी तरह ही उत्तर दे, वहीं पे है। पूरे मन से भगवान को प्यार करो, मिलेगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर से नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज। और एक प्रश्न जो है ना, तीसरा जो तुलसीदास जी का प्रेयर है, उसके बाद एक लाइन लिखा है उन्होंने, इफ एनीबडी एक्सपीरियंस वन अटेन्स द परफेक्शन एंड बिकम्स इमिनेंट। वो भक्ति प्रयच्छ गुरु पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु माम में। तो इसको क्या है? हाँ हाँ, यही तो तुलसीदास जी का है ना जी। इसी भक्ति प्रयच्छ गुरु पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम गुरु मानस, यही तो है तुलसीदास जी का। रामायण में रामचरितमानस अपने उसमें राम नाम संकीर्तन के पहले है ना। जी जी है। तो वो वैसा उसको पढ़ो, एवरीडे मेडिटेट करो, तब तो आपको प्राप्त होगा, नहीं तो कैसे होगा? निरंतर भगवान से प्रार्थना करना है कि मुझे भक्ति प्रदान करो। हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, हुआ कि नहीं हुआ? जी महाराज। अच्छा, उसके बाद एक है कि why does divine mother puts even ज्ञानी into delusion? चंडी में है ना, ज्ञान महामाया के मोह से ज्ञानी पर्यंत भी ये डिल्यूजन में पड़ जाते। तो वो ऐसा है कि माँ जो है अपना लीला करना चाहती है, बिजी विद प्ले। अच्छा, हाँ। सो वो उसको गोद में नहीं लेती है, चलने देती है, खेलने देती है ना। कहानी बोलते हैं ना, हाँ, बच्चा खेल रहा है तो माँ खेलती रहती है, कुछ नहीं करती है ना। हाँ। जब बच्चा खेलता रहता है तो माँ भी अपना काम बनाती है, खाना बनाती रहती है। हाँ, जब वो सब कुछ छोड़ के चिल्लाएगा तब माँ जाके उठाएगी। हाँ, तो माँ देखती है। ज्ञानी को भी ऐसे ही होता है। हाँ, ज्ञानी है, पूरा ज्ञानी नहीं हुआ, अभी चल रहा है, उसको भगवान संसार में मन लग रहा है, तो वो चलने देते हैं, चलो। अच्छा, उसके बाद है एक जगह है, वाई डिवोटी ऑफ मदर काली इज जीवन मुक्त एंड एवर ब्लिसफुल। भाई डिवोटी ऑफ मदर काली इज जीवन मुक्त एंड एवर ब्लिसफुल। बिकॉज उसको मालूम है कि माँ मेरी है, मेरी माँ है हमेशा, तो मैं किसकी चिंता करूं? पर ऐसा तो कृष्ण भक्त भी सोच सकते हैं। हाँ, सोच सकते हैं ना। हाँ, वो उस संदर्भ में उन्होंने जहाँ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ माँ की बात हो रही है। वो भक्तों की बात, अब वो
कृष्ण को बोलो, राम को बोलो, बात तो एक ही ठीक है है, ना। की बात है। हाँ, हम्म, अच्छा, हम्म। एक लास्ट प्रश्न है, वो जो लीगल मैटर में ये बोल रहे हैं ना, आप छोड़ दो, यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ संसारी। तो यहाँ मेरा प्रश्न है कि ठाकुर भी तो कहते थे ना कि भक्त हो भी तो बोका हो भी कहनो। तो अपना जो राइट्स है उसको इस संसार में छोड़ना ठीक है कि हाउ वी शुड टैकल द प्रॉब्लम? देखो ऐसा है कि ये दो प्रकार के लोग हैं। उसको क्या है कि यहाँ पे वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। देखो हाँ वो भक्त के बारे में जो इसको बिहारी बाबू से बात कर रहे हैं ना, जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई तुम दूसरे प्रकार के आदमी हो, तुमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम्म अगर दूसरा कोई व्यक्ति इतना बड़ा भक्त ना होता तो वो करता, लीगल मैटर करता कि मेरा पैसा ये जमा है, पैसा है, ये मेरा है। हम्म लेकिन बिहारी बाबू के लिए भक्त, उन्होंने कहा है कि तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो इसको। यानी उसको पूरा पढ़ने से पता चल जाता है कि एक लीगल मैटर था, उनका प्रॉब्लम अटका हुआ था। तो वो कहते हैं कि वो कोर्ट में जाना चाहता था, इत्यादि है हाँ सब। हाँ जी जी हाँ। महाराज जी, तो स्वामी जी का भी तो लीगल मैटर में वो भी तो, उन्होंने भी तो काफी एक्टिवली। हाँ उन्होंने भी किया था पूरा। हाँ, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हाँ। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है वो। क्योंकि एक बार लीगल मैटर में गए तो बाबरा इतनी मुश्किल हो बहुत जाती है, ये भी तो लंबा हो सोचो। जाता है। बस महाराज इतना ही है। हाँ, शिवानी। हाँ, प्रणाम महाराज। वैसे महाराज, शिवानी हाँ, शिवानी जब तक शिवानी जी अपना प्रश्न जी शुरू महाराज। करें, मैंने सोचा नहीं, दिलीप आ भाई गई ने कहा शिवानी जी, था। आ गई हैं, शिवानी जी आ गई हैं। अच्छा ठीक है, करिए करिए। नहीं, महाराज संजय जी मुझे बोलिए जाना आप। है। नहीं कौन मेरा, कर रहा था तू? ठीक है। नहीं मैं बीच में वो जोक ही था। आप शिवानी जी को करने दीजिए, हम लोग बाद में देख लेंगे। अच्छा, महाराज पेज नंबर 164। वैसे थोड़ा सा आप ये बोल चुके हैं इस बारे में। पैराग्राफ लाइंस हैं, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड डिपेंड्स ऑन हिज ग्रेस एंड नॉट माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. One should have this strong conviction in his mind. Practicing spiritual disciplines is only to make the wings tired. So my question is, if one is not doing or following any spiritual practices knowingly or unknowingly, then also God's grace may bestowed on that person. हाँ, वो तो ऐसा है कि ठाकुर ने दूसरा बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि भगवान की कृपा की वायु चल रही है, बह रही है, तुमको पाल तानना पड़ेगा। ये भगवान का नाम करना, साधना करना, ये मानो पाल तालने के समान है। जो भगवान की जो कृपा है उसको तुम कैच कर सको, पकड़ सकोगे। अगर नहीं करोगे तो भी भगवान की कृपा चल रही, तुमको लाभ नहीं हो रहा। तुम ध्यान जप नहीं कर रहे हो, नहीं, तुम्हारा अगर कोई अननोइंगली, तो उनके ऐसा है ना, नहीं, कृपा अगर आ जैसे गई। फैमिली में ही वो कल्चर ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसके ऊपर कल्चर ही नहीं वो है, जैसे इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। नहीं, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा आई है, उनको लाभ ही नहीं हुआ। उसका क्या लाभ होगा? जो साधना करेगा नहीं, बट उसको, अदरवाइज वो बाकी सब कर्म कर रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि जब तक साधना नहीं होगी, ध्यान जप है, तपस्या है, ये जो साधना करते हैं ना, पतंजलि योग सूत्र में साधना बताई है, ज्ञान योग की साधना बताई है, राज भक्ति योग में बताया है। तो ये साधनाएं जब हम नहीं करेंगे, नियमित रूप से नहीं करेंगे, तो मन जो है वो भगवत कृपा की हवा को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होगा। पाल नहीं तनेगा। तुम्हारा मन जो है वो, तुम अच्छी तरह अच्छा, जीवन नहीं, व्यतीत कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो, बुरा काम नहीं करते हो, लेकिन भगवान के प्रति आपका झुकाव बिल्कुल नहीं है, तो भगवान की कृपा क्या लाभ करेगी? तुमको अच्छा खाना मिल जाएगा, तुमको अच्छी तरह संसार जीवन निकल जाएगा, महाराज लेकिन मैं ये कह रही थी, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न? पर महाराज मैं ये कह रही थी स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेरा मतलब ये था पूछने का, जैसे मंदिर वंदिर जाना, धूप दीप करना, ये सब चीजें, मतलब मेडिटेशन और नाम जप तो कर रहे हैं,
बस बाकी का सब नहीं कर रहे, व्रत इत्यादि होता है जैसे बाकी सब चीजें होती हैं जो, अरे ये तो वो मतलब था superficial- मेरा। ये जप और superficial- मेडिटेशन तो ठीक है। अच्छा, प्रथमा प्रतिमा पूजा ये तो प्रथम है। जब थोड़ा सा मंदिर गया, इसमें क्या रखा गया है? वो ये मॉरल वैल्यूज की प्रैक्टिस, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य हम्म, इत्यादि की प्रैक्टिस तो होना चाहिए, हम्म, और उसके साथ में ध्यान जप होना चाहिए, और तब भगवान की कृपा होगी तो तुमको ठीक है। लाभ होगा। हम्म, ये बाहरी जो है वो मंदिर वंदिर जाना, ये तो ठीक है सेकेंडरी महाराज। चीज है, वो सेकेंडरी है, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, वही वही पूछना चाह रही थी, ठीक है हाँ, महाराज। नेक्स्ट पेज नंबर 170, इसमें है दोज हु स्पेंड देयर मनी फॉर होली कॉजेस दे नेवर गेट बाउंड, even handling money in this world of Maya, they remain like free souls. So my question is, what does it even handling of money and how it can be done? लेना What they देना wanted देना to है say here, even संसार, handling. अरे संसार में रहते हैं, पैसा लेना देना करना पड़ता है ना, ये वो हैंडलिंग में नहीं है ना, पैसा लेना देना। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल था ना, हाँ, एक्सचेंज नॉर्मल ऑफ मनी। सामान्य जीवन ठीक है। में पैसा लेना देना जो हम करते रहते हैं, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा महाराज, पेज नंबर 173, लेटर 98। God is all auspicious. This faith brings peace and happiness. If you try to explain the world through intellectual reasoning, you will be in trouble. So my question is, what kind of trouble they are talking here? यानी बुद्धि नहीं, क्या समझ नहीं, यानी एक आदमी जो Intellectual है, reasoning तो महाराज रहेगा ना? नहीं वो तो इंटेलेक्चुअल विद्या में तुमने एक तरह से पढ़ा, दूसरा आदमी आएगा वो उसको दूसरी प्रकार से समझा देगा। शास्त्र में लिखा है तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो तो आज एक किताब पढ़ी है, एक प्रकार का समझा, दूसरे विपरीत प्रकार के विचार भी आ जाएंगे, एक तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, तुमको तीसरी प्रकार से समझा देगा, और उसके बाद में समस्या ही समस्या हो जाएगी। मैं क्या करूं, इतनी सारी बातें पढ़ ली है कि मेरा मन विभ्रमित हो गया है। ये होता ही है, अरे हाँ, तुम्हारा ही होता है होता है, महाराज ऐसा जी, और तुम्हारा होता है। सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? जी ठीक है, दैट्स ऑल महाराज। अच्छा, निवेदिता, निवेदिता है कि नहीं? हो गया महाराज, तो निवेदिता हो गया उनका। नहीं, निवेदिता का थोड़ी हो, हाँ हुआ, निवेदिता जी का नहीं हुआ है। उनका हो गया महाराज, वो हो चले गया, गए। चले भी निवेदिता जी गए, का हो गया है। चले भी गए। हाँ, और वो चले भी गए। अच्छा, तो कौन बचा? सतीश या कुंदू? चले गए। यस महाराज। हाँ, महाराज, letter number 93, these spiritual practices should be as spontaneous as breathing. Now, how does it happen? Only through the practice of japam, or one has to develop other qualities like discrimination, 6 values, etc. नहीं, जो भी करेंगे ना वो भी सब अभ्यास हो जाना चाहिए। अच्छा, जो कर रहे हो उसी को देखो स्पॉन्टेनियसली। देखो ठाकुर का अभ्यास हो गया कि वो गलती से भी पैसा छू नहीं सकते थे, तो isn't it? It has become as natural as continuous. Yes. यानी सांस प्रश्वास जैसा उनका हो गया। यानी वो ऐसी चीज नहीं है कि रोज करना है। अगर रोज करने की बात हो तो ध्यान जप है। ध्यान जप अगर नियमित कर लो तो उसके बाद में ऐसी अभ्यास हो जाएगा कि तुम बैठे हो तो बराबर जप चल रहा है, ऑटोमेटिकली जप चलता रहेगा। या एक दिन निकल जाता है, होता नहीं है तो मन खराब होता है, ये तो होता है। जिस दिन हो नहीं पाता, अगर शाम को कहीं चले गए या ठीक टाइम में बैठ नहीं पाया, तो उस टाइम में एक अभाव बोध होता है कि नहीं हुआ कुछ। हाँ, तो यही तो हुआ, ये तो अभ्यास हो गया ना। हाँ,
यानी ऐसा हो जाएगा कि तुम अगर शांत बैठोगे तो ऑटोमेटिकली जब चलने लग जाएगा। अच्छा महाराज, हाँ, ऐसा होना चाहिए। यस महाराज, होता है। हाँ, जैसे श्वास प्रश्वास होता है वैसे ही जप होता है। यस। नियमित रूप से करो, सुबह शाम जब कभी मौका मिले जब करो। करते करते ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। Yes. Then letter number 95, Maharaj, the Swami advised to be an instrument in his hand. So it sounds very easy, but it does not happen. What are the obstacles in developing this sense of resignation? Is it only the ego? देखो ऐसा है, ये शरणागति जो है ना, ये साधना है, एक अपने आप में एक पूरी साधना है। मेरा एक आर्टिकल है आनंद की खोज में शरणागति, हाँ महाराज, उसमें मैंने एक साधना करके उसको बताया। इसमें 4 लेवल बताए हैं मैंने। पहला है इच्छा शक्ति का त्याग, इच्छा का त्याग। दूसरा है कर्तापन का त्याग। तीसरा है कर्म का त्याग। और चौथा है कर्म फल का त्याग। तो इफ यू रियली वांट टू हैव शरणागति, उसको एक नियमित साधना के रूप में लेना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। अच्छा, नहीं, वे बिल्कुल नहीं होगा बोलने से। इट इज अपने आप में एक साधना ही है, पूरी साधना है, एक इंटेंस साधना है, वो सेपरेट साधना है। अब जैसे गिरीश चंद्र घोष का था, ठाकुर ने करवाया ना, तो ठाकुर ने कहा, उसने कहा कि मैं ये करूंगा, तो ठाकुर ने कहा ये नहीं, बोलने से नहीं चलेगा। एंड गिरीश चंद्र बहुत इंटेंस तुमको शरणागति की प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो ये शरणागति को केवल बोलने से ये नहीं होता, इट हैज ए ट्रेमेंडस साधना। वर्णाश्रम का पालन करना है, संघ के अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना है, और अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करना है। लाटू महाराज जो है कंटिन्यूअसली 1 साल भर तक वेट करते थे, या काम करूं कि नहीं करूं, जब आदेश आता था तब करते थे। तो इन दिस वे शरणागति बिकम्स ए वेरी सीरियस साधना अपने आप। ये अब ये होगा तब अब तुम्हारा प्रश्न क्या है वो देखो, समझ में आ जाए। यस महाराज, मतलब मैंने जो सोचा था कि सिर्फ कर्तापन, मतलब अपने ईगो, मैं कर रहा हूँ, ये छोड़ने से ही हो जाएगा, मतलब मेरे उससे नहीं होगा। इच्छा भी जो जड़ है वो भी निकालना है, कर्मफल त्याग भी करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति के कर्ताफल का त्याग इतना आसान नहीं है ना। यस महाराज जी, ये पूरे आर्टिकल में एक चीज स्वामी तुरानंद जी ने बार बार कहा है अलग अलग लेटर्स में, वो ये है कि भगवान जो भी करते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए करते हैं, बस। तो ये एक बड़ा सेंट्रल थीम बना हुआ है महाराज। द पॉइंट इज कि उसको अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है ना। जी जी, एग्जैक्टली दैट, तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ, और उसी के लिए ये एक साधन के हिसाब से ही लेना चाहिए ना, वही तो है। ये एक आर्टिकल जो है उसको बार बार पढ़ना चाहिए, उसको एक इंप्रेशन दिमाग में डालना पड़ता है। यस मैम। ऐसा है कि एक नियम बना लिया कि भाई 10,000 जब रोज करना है तो इट इज इजी, लेकिन ये भाव करना है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो उन्होंने यहाँ पे कहा है इस अपने ये इन लेटर्स में जो बात कह रहे हैं, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक साधना करना बहुत इजी है कि हम उसे 10,000 जप करेंगे महीने भर तक, साल भर तक, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ के शरणागति का भाव के प्रभु सब करा रहे हैं, इट इज बिकम ठीक महाराज। देन लास्ट क्वेश्चन महाराज, एक मिनट बीच में मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, करो। हाँ जी, ये जैसे अभी आपने कहा है कि ये जैसे कि बार बार पढ़ना और इसको करना, तो कहीं पे क्या कोई एक आप महाराज एक सेशन हम सबका ले सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ रिट्रीट, के जिसके अंदर ये भाव को हम जागृत कर सके, उसको भावना ऐसी बनवा सके आप छोटे से सेशन में? कि जैसे ये जो आपने भी कहा ना कि ये शरणागति वाला, तो इसका एक जैसे मिनी रिट्रीट एक बना के कि उसमें आप
जैसे आप पहले भी लिया करते थे रिट्रीट यहाँ पे, तो ऐसी छोटी सी एक रिट्रीट हो कि जहां पर आप हमको भावपूर्ण ये जो है ना, हम अपने अंदर उतार सके इसको। अरे अरे, ये मेरे अंदर में तो उतरे है। नहीं 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 महाराज। क्योंकि असली तो महाराज जो अभी आप कह रहे हैं ये सारा बहुत जरूरी है, पर हम इतने फंसे रहते हैं कि अभी जितना भी हम करते हैं संडे को, वो अगले दिन तक सारा जीरो हो जाता है। तो पर बार बार अगर वो मन के अंदर कहीं पे ऐसे बस जाए और उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करें एक छोटे से सेशन की, आप अगर ऐसा गाइडेड एक सेशन बना दे तो असर हमारे पे होगा असली में तो। जी अरे महाराज, बाबा। एक मेडिटेशन सेशन अगर हो जाए तो अच्छा है महाराज। जूम पे तो इतना कुछ हो रहा है, तो मेडिटेशन क्यों नहीं होगा? अच्छा जी ठीक है, महाराज, सोचे। सबके लिए अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, देखो आप आप लोगों का देख ओपिनियन। लीजिए। अच्छा ठीक महाराज है। हमारी खास रिक्वेस्ट है आपसे कि एक थोड़ा सा हमारे गाइडेड लिए ये एक भी हाँ, एक तो- गाइडेड मेडिटेशन अगर हो जाए ना तो हम्म। अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, इसमें सोचने दो मुझे। हम्म। हाँ जी महाराज। Then अच्छा। महाराज लास्ट क्वेश्चन महाराज, हाँ। इसके ऊपर चर्चा तो हुआ है। द वर्ल्डली लाइफ इज नॉट फॉर यू, is it advisable to forego one's legitimate claim? Earlier, a senior person like us could afford to do this because there were others to look after such affairs. Now, when even the children don't live with parents, perforce one has to meddle in worldly life. What is the solution? ना, ये जो है, ये स्वामी जी ने, तुरानंद जी ने एक वो स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए कहा है, बिहारी बाबू के लिए, अच्छा महाराज। कि वो तुम जो है वो छोड़ दो उसको, वो उसके लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा है। आपको तो क्लेम करना पड़ेगा। और ठाकुर तो, वो जो ठाकुर के और माँ काली का जो प्रसाद आता था ना उनके लिए, उसके लिए भी क्लेम करते थे, छोड़ते नहीं थे। हाँ। ये माँ की इच्छा है, आज नहीं आया मेरे पास, ऐसा करके छोड़ते नहीं थे। क्यों नहीं आया? वो भंडारी से पूछते थे, वो मैनेजर से पूछते थे, क्या बात है हमारा प्रसाद क्यों नहीं आया यहाँ? तो भाई ये संसार में रहते हो तो ये सब करना पड़ता है, वो इट इज नॉट ए लॉ। ठीक महाराज। यस प्रणाम। सब हो गए? हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। सब कोई बचा तो नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो क्या सजेशन है? एक तो सजेशन है गाइडेड मेडिटेशन का। हाँ तो ठीक है, देखेंगे। देखो अब हम तो ऐसी जगह बैठे रहते हैं, क्या मेडिटेशन करेंगे? यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम जिस हॉल कमरे में बैठते थे, आज कमरा लॉक है, वहाँ कोई डिवोटी आने वाले हैं, वो साधु लोग आने वाले हैं। अभी हम बाहर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मेडिटेशन का नियम है, असुविधा में ध्यान जप करना चाहिए। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक भक्त जो है वो उत्तरकाशी गए, वहां पे उनके एक मित्र मिले, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के उत्तरकाशी में रहते थे, बंगाली। उनसे बात किया, अरे भाई कैसे केमन आछो, बंगाली में बोला। तो वो उत्तर हिंदी में जवाब दे रहे, मैं ठीक हूँ। क्या कोथाय ठाको, और कहाँ रहते हो? कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो बंगाली बोलते जावे और वो हिंदी में उत्तर देते जावे। तो तंग आ गया। उसके बाद वो तो बंगाली उनका दोस्त है, कि तुम्हें हिंदी बोले जाते, तुम्हारी असुविधा हो, तुम हिंदी बोल रहे हो, तुमको असुविधा नहीं हो रही है? तो उन्होंने एक बात अच्छी बात कही, साधु जीवन असुविधा का जीवन है। साधु जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन असुविधा का जीवन है। यहाँ तक कि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि असुविधा में ध्यान जप करना चाहिए। एसी लगा के बढ़िया गद्दे पे बैठकर ध्यान करोगे, तो जब एसी नहीं होगा, गद्दा नहीं होगा, तो ध्यान नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। और इसीलिए लोग तपस्या करते थे, जंगल में जाते थे, और असुविधा में एक ऐसा आसन करते थे जो कष्ट देने वाला होवे, और उसमें ध्यान करते थे। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। साधु जीवन असुविधा का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन सोशल, सामाजिक और फिजिकल असुविधाओं का जीवन है।
मन को हमेशा सब समय आपको आध्यात्मिक स्तर पर रखना चाहिए। सूर्यानंद जी महाराज भी बताया महाराज जी कि आई विल टेक बाथ व्हेन द वेव्स ऑफ द ओशन सबसाइड्स, ये कभी नहीं होने वाला है। कभी नहीं होने वाला। ठीक है, यस प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अच्छा भाई। रवि, रवि, शांति मंत्र महाराज। हाँ भाई। शांति ओम मंत्र। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रणाम महाराज।